Hello and welcome, student. So, in the last class, we were doing the third level, which was written by Jack Finney. And in this video, we are going to continue the story further. We have discussed the introduction part of the story, where we discussed two characters. The first character was Charlie, 31-year-old, and another character was Sam, who is a psychiatrist and best friend to Charlie. In the first video, we saw that Charlie went to meet Sam for his certain problems. Now we are going to discuss the story further. We have also got to know in the first discussion or in the first video that Charlie has a problem, that he has witnessed the third level at the Grand Central Station subway. The third level, which does not even exist. What solution does Sam give for that? We have also discussed. We learned that Sam says to Charlie that that is a hallucination. The third level is a waking dream fulfillment for you. Sam commented to Charlie that the third level that you have seen on the Grand Central Railway Station of New York, that is just a waking dream fulfillment for you. मतलब तुम ये चाहते हो कि तुम उस स्टेशन पर पहुंचना चाहते हो, तो वो सिर्फ तुम्हारा वहम है. कहने का मतलब वहम है. अच्छा, अब आगे चार्ली क्या कहता है? व्हाट डज चार्ली हैज टू से? यहाँ पर चार्ली जो है वो ग्रांड सेंट्रल स्टेशन का एक डिस्क्रिप्शन दे रहा है. आई विल रीड दैट डिस्क्रिप्शन फॉर यू एंड वी विल सी व्हाट चार्ली हैज टू से. Sometimes I think Grand Central is growing like a tree, pushing out new corridors and staircases like roots. There probably a long tunnel that nobody knows about, feeling it's very way under the city right now. And it's way to Times Square and maybe another to Central Park, and maybe because for so many people through the years Grand Central has been an exit, a way to escape. Maybe that's how the tunnel I got into, but I never told my psychiatrist friend about that idea. Yes, you see, what does Charlie has to say about the Grand Central Station? He says that the Grand Central Station has many tunnels. उसमें बहुत सारी टनल्स हैं जो एक पेड़ की रूट की तरह पूरे न्यूयॉर्क सिटी में फैली हुई हैं. कोई एक टनल सेंट्रल पार्क में निकलती है, तो कोई एक टनल सेंट्रल बैंक में निकलती है. और चार्ली साथ ही साथ अपनी इस फीलिंग को एडमिट भी करता है. He admits that perhaps there is a tunnel which is used as a means to escape. Yes, it is very important for us to understand this word escape. क्योंकि according to Charlie's psychiatrist friend Sam, Charlie did also want to escape from the reality of the world. Right? वो भी escape चाहता था. हालांकि उसने अपने दोस्त सैम को बताया नहीं कि आई वॉन्ट टू एस्केप, बट सैम समझ गया. और यहाँ पे ये जो लाइन चार्ली ने यूज़ करी है कि एक टनल जो है वो शायद रियल वर्ल्ड से एस्केप करने के लिए है. तो ये जो एस्केप वर्ड है ये यहाँ पर हमको चार्ली का रिफ्लेक्शन, उसकी थिंकिंग का रिफ्लेक्शन हमको दिखाता है. आगे व्हाट डज चार्ली हैज टू से अबाउट दैट? द कॉरिडोर आई वॉज इन बिगेन एंगलिंग लेफ्ट एंड स्टैंडिंग डाउनवर्ड्स एंड आई थॉट दैट वाज रॉन्ग. वो उस कॉरिडोर के बारे में बताता है जिस कॉरिडोर में चार्ली घुस गया था. और साथ ही साथ चार्ली ये भी एडमिट करता है कि चार्ली जो है वो कई बार ग्रांड सेंट्रल पे हंड्रेड्स ऑफ टाइम गया है, बट एज मैनी टाइम्स ही गोज टू ग्रांड सेंट्रल स्टेशन ही गेट्स लॉस्ट अवे. He does not recognize or he does not identify staircases or corridors or lobby. वो कहता है कि जब भी मैं ग्रांड सेंट्रल स्टेशन जाता हूँ मुझे हर बार कोई एक नई लॉबी, कोई एक नया स्टेयरकेस या मुझे कोई एक नया कॉरिडोर दिख जाता है. And this time also it so happened with Charlie that he stepped into a new corridor, a new lobby, and through that corridor he reached to a arc type doorway, and after crossing that doorway Charlie stepped into the third level of Grand Central Station, which in reality does not even exist. अब आगे क्या होता है जब वो थर्ड लेवल पे पहुंच जाता है? तो वो जिस थर्ड लेवल पे पहुंचा है उस एक आर्क टाइप डोरवे से चार्ली जो थर्ड लेवल पे पहुंच गया है ग्रांड सेंट्रल स्टेशन के, उस थर्ड लेवल का चार्ली किस तरह से डिस्क्रिप्शन देता है? ही सेज कि वहाँ पे ब्रास स्पिटून्स थे फ्लोर पे. व्हाट आर स्पिटून्स? दिस इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू लर्न दिस वर्ड.
Spittoons means a jar to spit, where people spit. They are called spittoons, brass spittoons thing. And across the station, a glint of light caught my eyes. A man was pulling a gold watch from his vest pocket. He snipped open the cover, glanced at his watch, and frowned. He wore a derby hat, a black four-button suit with tiny lapels, and he had big black handlebar mustache. वो जब उस थर्ड लेवल पे पहुंचता है तो वो डिस्क्रिप्शन देता है कि मैं काफ़ी जो वहाँ पर देख रहा था, वहाँ पर एक आदमी था जिसने एक ओल्ड स्टाइल का सूट पहन रखा था. उसने अपने पॉकेट से, वेस्ट पॉकेट से गोल्ड वॉच निकाली और इस तरह से टाइम देखा. मतलब वो कुल मिला के ही इज़ ट्राइंग टू गिव एन इम्पैक्ट ऑफ द ओल्डन डेज ऑफ द ईयर 1890s. Then he looked around and saw that everyone in the station was dressed like 1890s something. Yes, this is the big evidence that he gives. He says that station में मैंने जितने भी लोगों को देखा, सब लोग ऐसे लग रहे थे जैसे सारे लोग 1890s के हो. सब लोगों ने उस तरह के कपड़े पहने हुए थे. I never saw so many beards, sideburns, and fancy mustaches in my life. We know that in 1890s, in the olden days, people used to keep big beards and big mustaches. And here we learn a word sideburns. Sideburn means यहाँ पर जो कलम जो होती है, these are called sideburns. So he says that मैंने अपने जीवन में इतनी सारी beards और इतनी heavy, क्योंकि these are the days जो हम ट्रिम और ग्रिम का ज़माना है, मॉडर्न ज़माना तो. बट इन ओल्डन डेज इट यूज टू बी. सो इट शॉक्ड हिम. और वुमेन वॉक्ड, वो एक वुमेन का डिस्क्रिप्शन भी देता है जिसने कुछ मॉडर्न कपड़े पहने हुए थे. तो ये क्या हो रहा था वहाँ पे? वाई वॉज दिस ऑल सीन डिफरेंट? ही डिसाइड्स टू वॉक ओवर टू अ न्यूज़ बॉय. चार्ली एक न्यूज़ बॉय के पास जाता है एंड व्हाट डज ही सी? ही सीज दैट उस न्यूज़ बॉय ने जो न्यूज़पेपर का स्टेक रखा हुआ है, द न्यूज़पेपर स्टेक, उसमें जो न्यूज़पेपर है, उस न्यूज़पेपर का टाइटल है द वर्ल्ड. उस न्यूज़पेपर का, जैसे हमारे यहाँ पर टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान टाइम्स और राजस्थान पत्रिका, उस तरह से उस न्यूज़पेपर का टाइटल था द वर्ल्ड. अच्छा, अब प्रॉब्लम की बात यह थी कि ये द वर्ल्ड जो न्यूज़पेपर है वो तो कई ज़माने से पब्लिश ही नहीं हुआ है. इट डिड नॉट पब्लिश फॉर मेनी एजेस. If the newspaper did not publish from many years, from where did this newspaper come? Charlie को अभी तक ये पता नहीं चला है. Till here, Charlie hasn't got to know that he has reached to 1894 or the third level. अभी उसको नहीं पता चला है. Third level का पता है, but he has reached to 1894. He does not know that. Then what does he do? उसके next Charlie goes to the ticket counter. टिकट काउंटर पर जाते जाते जब वो उस न्यूज़पेपर को देखता है तब उसे पता चलता है कि उस न्यूज़पेपर के ऊपर डेट लिखी हुई थी जून 11, 1894. जून 11, 1894. और तत्कालीन राष्ट्रपति के बारे में एक मुख्य खबर भी उस न्यूज़पेपर के मुख्य कवर पर थी. तब चार्ली को पता चलता है कि आई हैव रीच्ड टू 1894. देन ही डिसाइड्स. See, हमने पहले देखा, we have seen that Charlie was a war sick person. He was a war pestered person. वो जाना चाहता था अपने olden days में. He was a nostalgic person. तो वो डिसाइड करता है कि यार मैं तो टाइम ट्रेवल में आ गया हूँ, मैं तो पीछे आ गया हूँ, 1894 में आ गया हूँ. और जैसा कि हमने देखा कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का जो थर्ड लेवल है, उस थर्ड लेवल से सिटी के आउटर एरियाज में ट्रेन्स जाती थी. तो वो सोचता है कि अब क्यों ना मैं काम करूं, यहाँ पे टिकट काउंटर से अपने लिए और अपनी बीवी के लिए गेल्सबर्ग इलिनॉइस की 2 टिकट खरीद लेता हूँ. गेल्सबर्ग इलिनॉइस वो जगह है जहाँ चार्ली का बचपन बीता है, जहाँ चार्ली की स्कूलिंग हुई है. सो व्हाट डज ही डिसाइड? आफ्टर रीचिंग टू दैट टिकट विंडो ही डिसाइड्स दैट आई विल बाय 2 टिकट्स फॉर गेल्सबर्ग इलिनॉइस एंड ही हैड इनफ मनी टू बाय दैट. अच्छा, व्हाट इज द प्रॉब्लम? When he takes the money out and when he gives that money to the person who is sitting on the ticket counter, it so happens that Charlie has the new money. Which is in use in 20th century. But the person who is sitting in the ticket counter, he is accepting the money which was used in 19th century. Means in 1894. He does not know what is modern currency.
So the person in ticket counter, he thinks that Charlie was trying to deceive him. And ticket counter fellow said, if you are trying to deceive me, this is not going to work. Charlie got afraid. He thought that जेल तो कहीं की भी हो, आरामदायक नहीं है ये, मुझे अभी जेल भेज देगा, 1894 का ही क्यों ना हो, जेल तो जेल है. सो चार्ली वहां से निकल गया. जिस रास्ते से वो आया था उसी रास्ते से चार्ली स्टेप्ड आउट. अच्छा, नेक्स्ट डे व्हाट चार्ली डिड डू. नेक्स्ट डे चार्ली ने अपने लंच आवर्स में, उसने अपने ऑफिस से कुछ देर की छुट्टी ली लंच आवर्स में, एंड ही वेंट टू अ मनी एक्सचेंज स्टोर. वेयर डिड चार्ली गो? चार्ली वेंट टू अ मनी एक्सचेंज स्टोर. Or on that store, Charlie exchanged almost $300 for the old currency. चार्ली ने ओल्ड करेंसी का $300 अपनी बैंक, ऑलमोस्ट उसकी इतनी ही सेविंग्स थी, उसकी जो $300 की जो सेविंग्स थी उसने वो बैंक से विड्रॉ कर ली, और उस सेविंग से उसने $300 जो नया करेंसी था, ही गेव इट, एंड इन रिटर्न ही गॉट द ओल्ड करेंसी जो 19th सेंचुरी में चलती थी. बट जैसा कि हमको पता है, पुराना पैसा लेना है जो अभी चलन में नहीं है तो वो महंगा आता है. तो इन ल्यू ऑफ $300 ही गॉट ओनली ऑलमोस्ट $200. $300 देके उसको सिर्फ $200. बट ओके, दैट वाज इनफ, क्योंकि वो $200 भी उसको पुराने टाइम के चक्कर में, तो इलिनॉइस में उसको वो इनफ होंगे. नेक्स्ट डे जब वो वापस जाता है तब उसको वहां पर कोई थर्ड लेवल मिलता ही नहीं है. ही डज नॉट गेट एनी थर्ड लेवल देयर. और जब ये बात वो अपने दोस्त सैम को बताता है, साइकेट्रिस्ट सैम को बताता है, तब वो साइकेट्रिस्ट सैम उसको कहता है, तू पागल है, तू मूर्ख है, ये तुझे नहीं करना चाहिए था, दिस इज रॉन्ग. अच्छा, अब कुछ दिन बाद सैम जो है वो डिसअपियर हो जाता है. सैम जो है वो डिसअपियर हो जाता है. चार्ली कहता है कि अब मेरे पास इस बात का प्रूफ है कि ग्रांड सेंट्रल रेलवे स्टेशन पे थर्ड लेवल एग्जिस्ट करता है. मैंने एक बार देखा, वो मेरा हेल्यूसिनेशन नहीं था, वहां पर वो थर्ड लेवल है. ठीक है, और मेरे पास इसका प्रूफ है. कौन कहता है? चार्ली. सैम से नहीं कहता है, वो नरेट कर रहा है कहानी में. क्या प्रूफ है? प्रूफ ये देता है कि सैम जो है वो डिसअपियर हो चुका है, गायब है, और 2 वीक निकल गए हैं, और 2 वीक से उसका कोई अता पता नहीं है. अच्छा, 2 वीक से अता पता नहीं है, तो चार्ली कहता है कि मुझको पता है कि वो पक्का ही गया है गेल्सबर्ग, इलिनॉइस में. और क्यों गया है? क्योंकि सैम ने पहले कई बार, many often when Charlie used to go to Sam, many often Sam said to Charlie that I wish I could go to Galesburg, Illinois and I could start up a new business of hay. चारे का और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स का वो वहाँ पर बिजनेस शुरू करना चाहता था. वो कहता है कि ये मुझे पक्का पता है कि चार्ली जो है वो वहाँ पर पहुँच चुका है. अच्छा, लेकिन इस बात का प्रूफ क्या मिलता है? अब प्रूफ ये मिलता है कि एक बार, कुछ काफ़ी टाइम हो जाता है, चार्ली जो है वो कई बार ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे जाके थर्ड लेवल ढूंढने की कोशिश करता है. ही ट्राइज मैनी ऑफन, बट इट सो हैपन्स दैट ही डज नॉट गेट द थर्ड लेवल. एंड हिज वाइफ, चार्लीज वाइफ, शी ऑल्सो गेट्स वेरी मच upset and irritated of all his activities. So once she also tells him that now you should stop looking for the third level. You should not look for the third level. Please forget the third level and start living the normal life. Every weekends, Charlie and his wife, both of them had a habit of looking into their stamp collection. We know that Charlie had a hobby of collecting stamps. Okay. Before we proceed further, we are to learn a new fact. First day cover. What is first day cover? In olden days, whenever a new stamp ticket was released, people used to buy one stamp ticket and they used to put that stamp ticket on an envelope, and they used to put a blank letter in that envelope, and they used to send that envelope to themselves. वो अपने आप को उसको पोस्ट कर देते थे. अच्छा, ऐसा क्यों करते थे? ताकि उसके ऊपर उन्होंने जो नया स्टैंप लगाया है वो स्टैंप का उनके पास प्रूफ रहे कि आज की तारीख, जिस दिन स्टैंप रिलीज होता था, on the date stamp was released, on that very same day they would put that stamp on the letter. So it was a proof that on this date the stamp was released, and that envelope was called the first day cover. The envelope that contained the first day stamp, that was called the first day cover.
So one day, when Charlie and his wife they were looking into their old covers, he found an envelope. Charlie says it is impossible. This envelope is not supposed to be here, but it is. This envelope is not supposed to be here, but it is. Okay, when he sees the date on that envelope, जब वो उस envelope पे date देखता है, तो उस envelope पे date होती है July 1894. The date was July 1894. और ये envelope उसके दादाजी के नाम पे, in the name of his grandfather, this envelope was sent. This envelope was sent to his address, which is in Galesburg. अच्छा, जब वो इसको खोलता है, जब वो इस एनवेलप को ओपन करता है, तो ओपन करके उसमें देखता है कि एक लेटर है और वो इस लेटर को पढ़ता है. क्या था उस लेटर में, मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ. चार्ली, ओके, दिस लेटर वॉज एड्रेस्ड टू चार्ली. दिस लेटर वॉज एड्रेस्ड टू चार्ली. क्या कहता है? आई गॉट टू विशिंग दैट यू वर राइट, देन आई गॉट टू बिलीविंग दैट यू वर राइट, एंड चार्ली इट इज ट्रू. I found the third level. I have been there 2 weeks ago. And right now, down the street at the Dallies, someone is playing a piano and they are all out of the front porch singing, saying my Nelly home. And I am invited over for lemonade. Come on back, Charlie and Louisa. Keep looking till you find the third level. It's worth it. Believe it. Yeah. मतलब इस लेटर में सैम ने लिखा है कि पहले जब तुमने मुझे थर्ड लेवल के बारे में बताया तो मैं उस पर विश्वास करना चाहता था, और बाद में धीरे धीरे मैंने उस पर विश्वास कर भी लिया. और फॉर योर सरप्राइज आई टेल यू कि मैं पिछले 2 सप्ताह से थर्ड लेवल के थ्रू गेल्सबर्ग पहुंच चुका हूं, और गेल्सबर्ग में मुझे बहुत मजा आ रहा है. जैसा तुमने बताया, एवरीथिंग इज लाइक दैट, पीपल आर वेरी पीसफुल, राइट? क्योंकि वो दैट द ईयर इज 1894, विच इज ऑलमोस्ट 23 years बैक द वर्ल्ड वॉर. 23 years बैक द वर्ल्ड वॉर. और इनका प्रॉब्लम क्या है मेन? व्हाट इज द प्रॉब्लम विद चार्ली? ही इज ए वॉर पेस्टर्ड फेलो. उसको वॉर का प्रॉब्लम नहीं चाहिए. वॉर की वजह से ही इज वेरी मच टेंस्ड, पेस्टर्ड. लेकिन वॉर के पहले के टाइम में द सिचुएशंस वर वेरी पीसफुल. सो सैम इज एंजॉयिंग पीस इन गेल्सबर्ग एंड ही इज ऑल्सो सजेस्टिंग चार्ली दैट जब तक तुमको थर्ड लेवल दोबारा नहीं मिलता तब तक कीप ट्राइंग, कीप ट्राइंग, कीप ट्राइंग, एंड इट्स वर्थ कमिंग. तुम भी गेल्सबर्ग में आ जाओ. अच्छा, जब ये पता चल जाता है तो चार्ली क्या करता है कि उसी मनी एक्सचेंज की स्टोर पे जाता है और पता लगाता है. देयर ही गेट्स टू नो दैट सैम एक्सचेंज्ड ऑलमोस्ट $800 करेंसी टू टेक न्यू करेंसी. इट मीन्स सैम प्री प्लान्ड इट. he knew that the third level existed, so he didn't visit. He simply changed the money and he directly went. And Sam succeeded reaching Galesburg, Illinois. So this was our story. The story ends here. This is what happened with Charlie and Sam. Charlie sees the third level, but when he goes back, he doesn't find it. Meanwhile, Sam, his psychiatrist friend, he gets to know, he starts believing what Charlie says, and he exchanges his money, and he reaches to Galesburg, and he writes a letter from there, which is dated 1894. He writes a letter to his friend and also suggests him to come to the Galesburg. I hope you all did understand this story. If you have any doubt, please mention in the comment section.